Good morning, students. In science, we are reading chapter 11, eyes, human eye. Okay, and today's topic is defects of vision. So, in the Zoom class, we have already read about this, and the corresponding video of the same is being uploaded. Okay, so let's start. Defects of vision. We know that normal eye can see objects over a wide range of distances varying from nearly 25 centimeters to infinity. What is the range of vision? A normal eye can see the nearest closest up to 25 centimeter and farthest up to infinity. Those who do not have any defect of the eye, they can see as close as 25 centimeter and as far as infinite distance. Okay? That is why we see the sunrise, sunset, which are in the horizontal position. That means what? If we can see sunrise, sunset, that means our maximum, that is far point of vision is infinity. Sometimes, in spite of all precautions and proactive actions, our eyes may develop some defects. However, our eyes are very sensitive, and we all of us take care of it. However, in spite of all precautions or proactive actions, yani, in spite of trying to keep our eyes best, our eyes may develop some defects. These can be due to a variety of reasons. In such a case, the eye may not be able to see objects clearly over its normal wide range of distances. Okay, so if there is defect, if your eye get defected, then you may not see the things clearly over the range of vision, yani from within a distance of 25-meter to infinity. Objects clearly over the wide range of vision. I know we have got wide range. A normal eye can see from near point to the far point, that is infinity. But after defect, if the eyes become defective, then it will not be so. The eye may have one or both of the following two common optical defects. So there are mainly two defects of the eye. Those are myopia and hypermetropia. Myopia and hypermetropia. Myopia is also called nearsightedness, है ना, और शॉर्ट साइटेडनेस. मायोपिया इज नियर साइटेड मतलब क्या? In case of, if you have got myopic defect, then you will be able to see nearer things clearly. Nearer things, near sightedness means you can see nearer things or closer things clearly, but cannot see the far away things clearly, है ना. Those things which are at a distance or at infinity will not be seen by you clearly. Then what is hypermetropia or farsightedness? And if you are suffering from this type of defect of the eye, then you will be able to see, you will not be able to see closer things, nearer things, but you will be able to see far off things or far away objects. Okay, so myopia is nearsightedness, means you can see, you don't have any problem of seeing closer things, but you have a problem of seeing distance objects. In case of hypermetropia, you don't have any problem of seeing far away objects, but you have a problem of seeing nearer objects. Okay, farsightedness. Farsightedness means you can see the far off things clearly, but nearer things in a hazy way. Let us look at these defects in some detail. Now come to myopia और नियर साइटेडनेस. So देखो, क्लियर काट यहाँ पर तुम सब अच्छा से पढ़ोगे तो सब समझ लो. What is myopia? Now myopia is a defect of the eye due to which the eye is not able to see distant object clearly. हाँ, दूर वाला चीज को वो ठीक ठाक नहीं दिखाई देता है. In such an eye, the light rays from the distant object arriving at the eye lens get converged at a point in front of the retina. In front of the retina. तो क्या हो जाएगा देखो, अगर किसी का मायोपिक डिफेक्ट है, सपोज दिस इज ए मायोपिक आई, तो मायोपिक आई में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट्स विच आर एट इन्फिनिटी, जो बहुत दूर में है, उसका इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना तक नहीं पहुंच रहा, रेटिना का पहले ही रिफ्लेक्टेड रेज मिल रहा है. ठीक है ना. द रिफ्लेक्टेड रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट्स एट इन्फिनिटी एंड मीट इन फ्रंट ऑफ द फोकस. ओके, दे डू नॉट रीच द रेटिना, दे मीट बिफोर द रेटिना. Okay, so if the image is not from the on the retina, then it cannot be seen clearly. So this is the myopic, this is the case of a myopic eye, that they can see nearer objects. For in nearer objects the image is formed in the retina, but far away or objects at infinity, they do not reach up to the retina, they are converged before reaching the retina. Image is formed in front of the retina, so it will not be a distinct vision, and you will not be able to see clearly the faraway things or objects at infinity.
So what are the causes of this? uh, in such an eye, the light rays from the distant object arriving at the eye lens get converged at a point in front of the retina. Retina का सामने ही converge हो जाता है. This defect may arise due to, so this what are the causes of this defect? Myopic defect. This defect may arise due to either excessive curvature of the cornea. एक्सेसिव कार्वेचर ऑफ द कॉर्निया. कॉर्निया का कार्वेचर यानी कॉर्निया क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा, कार्वेचर बढ़ जाएगा, तुमको लगेगा बाप रे आंख बाहर चला रहा है. सो एक्सेसिव कार्वेचर ऑफ द कॉर्निया और इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, है ना, इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल. दोनों केस में ही आईबॉल सामने आ जाएगी. यानी इसमें क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन रेटिना एंड द आईबॉल गेट्स इंक्रीज, डिस्टेंस बिकम मोर बिटवीन द रेटिना एंड द आई लेंस. Retina and the eye lens distance increases, so the refracted rays do not reach up to the retina, they meet in front of the retina. Retina का सामने ही वो सब क्या, all these refracted rays coming from infinity are not reaching up to retina, they are converged in front of the retina. retina का पहले ही converge हो रहा है, तो image यहाँ बन रहा है, तो यहाँ बनने से दिखाई नहीं देगा, है ना. if images reach to the retina, then only light sensitive cells can see the images and or form images of the objects. So what are the defects of myopia? What are the reason for myopic eye or myopic defect? The defect may arise due to excessive curvature of the cornea or elongation of the eyeball, है ना. elongation of the eyeball, eyeball elongated हो जाए, क्या हो जाएगा, थिकर हो जाएगा. थिकर होने से फोकल लेंथ घट जाएगा. तो फोकल लेंथ घट जाएगा मतलब क्या, फोकल लेंथ छोटा हो जाएगा. फोकल लेंथ छोटा मतलब कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा. तो कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होने के चलते रेटिना तक नहीं पहुंचा, रेटिना का पहले ही कन्वर्ज हो जाएगा. ठीक है ना. This is because of the thicker eyelids and or distance between the retina and the eyelids, distance ज़्यादा है. तो देखो, the defect can be corrected by using a concave or diverging lens of appropriate focal length. तो इस डिफेक्ट को तो हम कैसे सुधारेंगे, जिसका मायोपिक आई है ना, तो उसका नज़दीक वाला तो देख पाएगा, नज़दीक वाला है ना, ही कैन सी द नियरर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली. तो उसका कारण क्या है ना, ही हैज़ लॉस्ट हिज पावर ऑफ एकोमोडेशन. ये जो सिलियरी मसल्स होता है, सिलियरी मसल्स हैव लॉस्ट देयर क्या कैपेसिटी, और the ciliary muscles have lost their bearing capacity. मतलब ciliary muscles क्या करता है ना, they control the aperture of the lens or focal length of the lens. But if the eye is myopic defect, then the ciliary muscles cannot adjust the lens properly. So that defect remains because of the inaction of the ciliary muscles, or we say the eye has got lost its power of accommodation. Okay, it cannot change the focal length of the lens because of the fatigue ciliary muscles. Then how it can be corrected? It can be corrected by using a concave lens of suitable focal length. अब देखो कॉन्केव लेंस, हम एक चश्मा में, हम आंख के सामने चश्मा लगाओ तो शायद स्पेक्टाकल्स में तुम्हारा क्या लेंस है, कॉन्केव लेंस है. तो कॉन्केव लेंस में अब देखो क्या करेगा ना, कॉन्केव लेंस विल डाइवर्स द रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी. जो इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट है टू इन्फिनिटी, उससे जो रेज आ रहा है उसको क्या करेगा, डाइवर्स करेगा, है ना. सो डाइवर्स रेज नाउ कैन अप टू, इतना पावरफुल हम सब लेंस लेंगे कि दे कैन सेंड द, है ना, incident rays up to the retina after refraction. Okay, and this the power of the lens is chosen so that the image is formed at the retina. अब देखो हम सब ये क्या है, we have taken a concave lens. तो concave lens form what type of images? वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल इमेज. वर्चुअल इरेक्ट एंड तो हमारा जो इन्फिनिटी में जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज ये बनाता है. कहाँ बनाता है ना, कॉन्केव लेंस में. तो हम सब कॉन्केव लेंस में हम सब जानते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही साइड में रहता है. तो ऑब्जेक्ट है इधर और इमेज भी तो बनेगा इधर ही. तो देखो जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है उसका वर्चुअल इमेज ये तो इरेक्ट एंड स्मॉल बनाएगा, है ना. दैट वर्चुअल और नियरर बनता है. वर्चुअल इरेक्ट स्मॉल एंड क्लोजर टू द लेंस बनता है. विद इन द फोकल लेंथ बने, विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. तो हमारा जो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है उसका हमारा वर्चुअल इमेज यहाँ बनेगा, है ना, एट द फार पॉइंट ऑफ द डिफेक्टिव आई. डिफेक्टिव आई तो इन्फिनिटी नहीं देख पा रहा लेकिन फार पॉइंट तो है, इन्फिनिटी से कम देख पा रहा है. तो जो इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहाँ बना देगा, द इमेज विल बी फॉर्म एट द फार पॉइंट ऑफ द डिफेक्टिव आई. तो यहाँ तक अगर बनेगा तो उसका पावर ऑफ एकोमोडेशन काम करेगा. दूर वाला के लिए पावर ऑफ एकोमोडेशन, है ना, उसका घट गया था, नज़दीक के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था और नज़दीक बना है तो इसलिए अब वो देख पाएगा. सो जो इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट है उसका इमेज फार पॉइंट ऑफ द डिफेक्टिव आई में आ गया, नज़दीक आ गया तो नज़दीक के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूर वाला के लिए प्रॉब्लम था.
So that is how the myopic eye can be corrected by using a concave lens of suitable focal length. ठीक है. Similarly, let us now come to अच्छा, how can this defect be corrected? That this defect can be corrected by using a concave or diverging lens of appropriate focal length or suitable focal length. तो appropriate concave lens लिया और देखो इमेज को कैसे रेटिना तक पहुंचा दिया. ठीक है. तो इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं ना, स्पेशलिस्ट they choose it they choose a suitable concave lens of suitable focal length so that the image is formed at the retina and the person can see the images of the objects at infinity or far away. Now let us come to know about the hypermetropia. What is hypermetropia? It is also called farsightedness. They can see far away objects clearly, but cannot see the nearer objects clearly. We may have seen some middle-aged people holding a book somewhat away from their eyes to read it properly. Middle-aged है ना आदमी क्या करते हैं कि थोड़ा दूर में रखता है, नजदीक से नहीं पढ़ पाता है. ठीक है ना, नजदीक वाला उसको दिखाई नहीं देता है, तो अब वो नजदीक वाला के लिए कैसे तब पढ़ पाएगा, वो दूर रखेगा. दूर वाला देखने में कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा हमारा जो क्लोजेस्ट नियर पॉइंट ऑफ द आई 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर में रहेगा तो दिखाई नहीं देता है. लेकिन हाँ 40 सेंटीमीटर 50-60 सेंटीमीटर है ना, हाँ अगर रहे तो दिखाई देता है. यानी ऐसा डिफेक्ट में हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए क्या हो गया ना, नियर पॉइंट है ना हैज इंक्रीज्ड, near point has increased beyond, it has gone beyond 25 centimeter. Okay, up to 25 centimeter they cannot see, but they can see distances beyond 25 centimeters. तो अब देखो, तो अब इसका कारण क्या है. We may have seen some middle-aged people holding books somewhat away from their eyes to read it properly. This is because their eyes are suffering from hypermetropia. ठीक है. In this case, the image of the nearby objects gets formed behind the retina. अब देखो ये है हाइपरमेट्रोपिक आई. ओके, मतलब वो नजदीक वाला नहीं दिखाई देता. नजदीक वाला क्यों, तब नजदीक वाला का इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना में नहीं बन रहा है, रेटिना पार कर जा रहा है ना. एग्जैक्टली फोकस रेटिना में नहीं होता है. द रेज विच आर the refracted rays or the rays coming and the incident rays coming from the object after reflection do not meet on the retina, they pass the retina, है ना. दे पास ओवर द रेटिना, तो रेटिना का पीछे बनेगा, तो पीछे तो रेटिना है नहीं, रेटिना तो है आगे, इसलिए इसमें ब्लर्ड इमेज दिखाई देगा, नजदीक वाला साफ सुथरा नहीं दिखाई देता है. ठीक है ना. क्योंकि तो ऐसा लेंस का क्या फोकल लेंथ ज़्यादा है, फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, इसलिए यहाँ कर मिल रहा है. ठीक, तो इसीलिए फोकल लेंथ ज़्यादा हो गया, तो थीन लेंस होने से फोकल लेंथ ज़्यादा होता है. ठीक है. और शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल, शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल, तो थीन लेंस हो जाएगा, फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, तो कन्वर्ज नहीं कर पाएगा है ना रेटिना में एग्जैक्टली, तो पार हो जाता है. तो इसीलिए अब ये एडजस्ट में ये जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है सिलेरी मसल्स वो भी नहीं कर पाता है, इसलिए डिफेक्ट रह जाएगा. अगर हाइपरमेट्रोपिक आई हो गया तो थिन लेंस हो जाता है, तो उसका इमेज रेटिना से दूर बनेगा, है ना. एंड द आई हैज डिफेक्ट हो गया मतलब क्या, द आई हैज लॉस्ट इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन, एडजस्टमेंट कैपेसिटी घट गया है, तो इसलिए ऐसा डिफेक्ट रह जाएगा अगर किसी को हुआ है तो. लेकिन इसको भी हम सब करेक्ट कर सुधार सकते हैं. तो चलो पहले जानकारी लेते हैं. सो दिस इज बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया. ठीक है, नजदीक वाला नहीं देख पाता है. इन दिस केस द इमेज ऑफ द नियर बाय ऑब्जेक्ट गेट्स फॉर्म बिहाइंड द रेटिना. देखो बिहाइंड द रेटिना, रेटिना पार करके बन रहा है इमेज. ठीक है, नियर वाला ऑब्जेक्ट जो है सपोज नियर पॉइंट में 25 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका इमेज कहाँ बन रहा है, इट इज पासिंग द रेटिना. सो रेटिना में नहीं बन रहा तो हमें क्लियरली फोकस नहीं होगा, क्लियर विजिबल नहीं होगा. सो फॉर्म बिहाइंड द रेटिना दिस डिफेक्ट एराइजेस. तो इस डिफेक्ट होने का कारण क्या है ना, दिस डिफेक्ट एराइजेस ड्यू टू आइदर है ना द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बिकमिंग टू लार्ज. फोकल लेंथ बढ़ जा रहा है, देखो फोकल लेंथ ज़्यादा हो गया, पार हो जा रहा है, वहाँ फोकल लेंथ में फोकस में मिलता है कोई भी रेज. सो फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बिकमिंग टू लार्ज, और नंबर 2 द आई बॉल गेटिंग शॉर्टेन, है ना. शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल शॉर्टन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, थिन लेंस हो जाएगा, तो फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाता है. ठीक है. So how can this defect be corrected? Now this defect can be corrected by using a convex or converging lens of appropriate focal length. This defect can be corrected by using a convex lens of appropriate focal length. ठीक है, तो appropriate focal length, तो आप देखो convex lens लिया है, चश्मा लगाया है जिसमें convex lens रहता है. तो convex lens हम सब जानते हैं कि convex lens का focal length का अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज कैसा बनेगा ना, वर्चुअल इरेक्ट एंड ऑन द सेम साइड.
ठीक है। तो जो सोचो कि 25 सेंटीमीटर में है, हाँ, तो ये लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ मोर देन 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यानी ये ऑब्जेक्ट जो 25 सेंटीमीटर में है, वो इट इज नाउ विद इन द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, सो इट्स इमेज विल बी, वर्चुअल इरेक्ट इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड। तो इसका इमेज देखो इधर बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है ना। The image is formed on the same side as the object and it is erect and virtual and bigger। तो ये जो 25 सेंटीमीटर में जो ऑब्जेक्ट है उसका बड़ा इमेज बनेगा, कहाँ, दूर में। तो कितना दूर में बनता है ना, जितना दूर उसका नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट ऑफ द डिफेक्टिव आई 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो ऐसा एक तो हम लेंस चुनते हैं जिसका इमेज इसका नियर पॉइंट में, डिफेक्टिव आई का नियर पॉइंट में बने। तो डिफेक्टिव आई का नियर पॉइंट में अगर बनेगा तो उसको तो दिखाए, उसके लिए एडजस्टमेंट कर सकता है। तो ये अगर इसका इमेज यहाँ अगर बन जा रहा है तो यहाँ के लिए प्रॉब्लम नहीं है, दूर वाला के लिए प्रॉब्लम नहीं है, दूर वाला दिखाई देता है। नज़दीक वाला के इमेज हो, वर्चुअल इमेज दूर में बनाया और दूर में है तो वो अब देख पा रहा है, दूर के लिए वो एडजस्ट कर पाता है, दूर के लिए पावर ऑफ एकोमोडेशन उसका चलता है, नज़दीक वाला के लिए पावर ऑफ एकोमोडेशन फेल कर जाता है, ठीक है ना। इस तरह से बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल focal length and objects which are nearer to the eye or the near point of the eye, and can be its image can be formed at the near point of the defective eye which is more than 25 centimeter। So if it is more than 25, then it can be visible to its image will be formed over the retina, no problem। So in this way these two defects can be corrected। This myopic defect is corrected by using concave lens and hypermetropic eye is corrected by using a convex lens। convex lens converging lens होता है, ये कन्वर्ज कर लिया, फोकल लेंथ इसका इसका कन्वर्जिंग पावर कम था इसलिए पार हो जा रहा, फिर एक तो कन्वर्जिंग लेंस ले लिए तो इसको खींच के क्या करेगा, नजदीक मिलाएगा, है क्या नहीं, कन्वर्जिंग पावर इसका ज़्यादा है। और तो यहाँ बन रहा और हमें दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट एट द फार पॉइंट ऑफ द डिफेक्टिव आई, है ना, ए नियर पॉइंट ऑफ द डिफेक्ट। नियर पॉइंट तो नॉर्मल आई का 25 सेंटीमीटर है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट कितना, 25 सेंटीमीटर नहीं है, थोड़ा ज़्यादा है ना, 40-50 इस तरह से। सो something sometimes during old age the eyelids of some people becomes hazy and even opaque। और ओल्ड एज में क्या हो जाएगा, हम सबका मोतियाबिंद हो जाता है, आई के ऊपर एक तो लेयर बन जाता है, तो बूढ़ा आदमी क्या, बुढ़ापा में दिखने के कम कम देखने को मिलता है, हेजी दिखाई देता है ना। सो समटाइम्स ड्यूरिंग ओल्ड एज द आईलेंस ऑफ सम पीपल बिकम्स हेजी और इवन ओपेक। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ए मेम्ब्रेन ओवर इट। तो मेम्ब्रेन लेटर पतला झिल्ली बन जाता है, पर्दा बन जाता है। व्हेन दिस हैपेंस द पर्सन इज सेड टू हैव कैटरेक्ट। तो इसको इस ऐसा डिफेक्ट को कैटरेक्ट बोलते हैं। दिस लीड्स टू डिक्रीज और लॉस ऑफ, है ना, of vision of the eye। it is possible to restore the vision in such case, है ना, ऐसा होने से हम सब रेस्टोर कर सकते हैं, दोबारा विजन को वापस कर सकते हैं। दिस इज डन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ द ओपेक लेंस विथ ए न्यू आर्टिफिशियल लेंस, है ना। तो हम सब ओपेक लेंस जो ओपेक हो जाता है, जिसमें लाइट नहीं पास होता है, उसको रिप्लेस करके नया लेंस लगा देता है, आर्टिफिशियल लेंस, ठीक है। और देन इट कैन सी क्लियरली, ओके। और कैटरेक्ट इज ऑल्सो रिमूव्ड बाय ऑपरेशन। Now care of the eyes, so this will I shall discuss in our next video। So for today let us finish it, try to draw the diagram and try to understand the principle of rectifying the defective eyes, rectifying of defective eyes। Thank you।